Hello everyone and welcome back. So I hope you all are doing great, and today I'm here with the lecture number 13 of class 12th, and which is all about electrostatics, as we are doing electrostatics. And in this lecture I'm going to cover two applications of Gauss theorem, that is electric field intensity due to solid sphere and electric field due to infinite thin sheet. So let's start. Very important class. इसके क्वेश्चंस आपके CBSE, JEE मेंस, एडवांस, नीट सारे एग्जाम्स के अंदर आते हैं, और ये दोनों एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके क्वेश्चंस बहुत आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यू कैन राइट ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. एक चीज सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली है, दैट इज नॉन कंडक्टिंग. अभी इसके बारे में बताऊंगा नॉन कंडक्टिंग का क्या मेन. में इसके ऊपर, इस वर्ड के ऊपर फोकस मैंने क्यों किया. लेट्स स्टार्ट. एज वी नो, एज वी डिड इन द लास्ट लेक्चर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, वी हैव कंसिडर्ड थ्री surfaces, three regions. Similarly, in this case, we are going to consider three regions. Let's divide three regions. First is your outside the surface. Outside, right? Outside the sphere. Outside the sphere. R greater than R. देखते हैं R स्मॉल r क्या, कैपिटल R क्या. Let's take a solid sphere. Solid sphere. And we have to calculate electric field at this point, which is lying outside the sphere. If this is your radius r of this solid sphere, as we know, in order to calculate electric field or electric flux through a closed surface, we have to use Gauss theorem, right? And in order to use Gauss theorem, we have to apply or make a Gaussian surface. Now, making Gaussian surface for this point, like this. Now, radius of this Gaussian surface is small r. As we know, let's start. Flux is given by phi is equals to E dot ds closed surface is equals to q upon epsilon naught. We have two vectors here. One is electric field and other one is this area vector. As we know, area vector, if we consider a small surface here, that is ds, now we know direction of this area vector is given by outward normal. So this is your outward normal, which is represented by n cap. It is representing the direction of this area vector, which is outward normal. And if this sphere is given positive charge, this sphere has positive charge, something like this, positive charge plus q. सिर्फ इतना लिख देते हैं यहाँ पे Q प्लस Q. अब आपको पता है प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगी, बाहर, आउटवर्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर हुई आपकी, बाहर. We can clearly see the angle between these two is 0 degree. So if we break this, that is EDS cos theta closed surface Q upon epsilon naught. अब इसको साथ लेके नहीं चलेंगे. इसके बाद cos theta, theta is 0 because electric field and normal are in the same direction. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो. एक स्टेप और लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे EDS n cap.
अब एरिया जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आर कैप आ गया। आर कैप और एन कैप की डायरेक्शन क्या है, सेम है। यहाँ पे मैं एन कैप लेता हूँ तो उसके बाद मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये चाहे आप ना भी लिखो, उस वे से भी कर सकते हो। फाई इज इक्वल्स टू डायरेक्ट लिखो EDS क्लोज सरफेस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जब क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन होगा, यू नो, इसको घटा देते हैं, ds का इंटीग्रेशन इज S Q upon epsilon naught, right? Q is the charge up to this surface and the surface area of sphere is 4 pi r square, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 upon 4 pi r square, जो कि यहाँ आ गया Q upon epsilon naught. So this is your electric field outside this solid non-conducting solid sphere. शेल की भी तो सेम थी ना, राइट? तो इसकी भी क्या है, सेम है, बिहेवियर बिल्कुल सेम है। तो बेसिकली हम देखें, चाहे कोई शैलो मतलब हॉलो बॉडी या कोई सॉलिड बॉडी हो, उससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहती है। एक पॉइंट चार्ज के लिए जैसे बिहेव करती है वैसी होती है, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए भी तो सेम ही है ना। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं सरफेस पे आ गए। अब मेन चीज है यहाँ पे आता है, यहाँ से जो सरफेस और इनसाइड की बात करेंगे, शेल से कैसे डिफरेंट है ये चीजें, तो आपको यहाँ पे पता लगेगा। चलो आगे देखते हैं। At surface means R is equals to R. Radius of Gaussian surface must be equals to radius of that actual solid sphere. So if we draw a solid sphere with radius capital R and the Gaussian surface lies on the solid sphere, on the surface of this, something like this, having radius small r. Now we know, if we consider a small surface ds, its direction is represented by n cap, and we know this sphere, solid sphere, has a positive charge q, then the electric field is also outwards like this. Now again the angle between these two is 0 degree. So we can simply write directly EDS integration Q upon epsilon naught. सब कुछ सेम है, यही प्रोसेस आप दोबारा लिख सकते हो, मैंने डायरेक्ट आपको ये लिख के दे दिया। अब EDS का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होगा, S होने वाला है यहाँ पे Q upon epsilon naught। सब कुछ पूरा प्रोसेस वो सेम है, आप दोबारा एज इट इज कॉपी करके लिख सकते हो। नाउ 4 pi capital R square, 4 pi capital R square, because now small r is equals to capital R. Actual solid sphere का भी यही रेडियस है, Gaussian जो surface है उसका भी रेडियस सेम है। Now one thing comes into play, which is volume charge density. As we know, we have considered a 3D body, और ये बॉडी अंदर से हॉलो नहीं है, like a leather ball. लेदर की बॉल भी अंदर से खाली नहीं होती, तो जो भी चार्ज होगा वो पूरी वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? पहले सरफेस था, शेल का सिर्फ सरफेस होता है, लेकिन लेदर की बॉल, प्लास्टिक की बॉल का सिर्फ सरफेस होता है, अंदर से खाली होती है। बट इफ वी टॉक अबाउट लेदर बॉल, उसका अंदर का सरफेस भी होता है, मीन्स अंदर की वॉल्यूम है उसकी, ऊपर भी है, सरफेस भी है, अंदर वॉल्यूम भी है। सो वी आर गोइंग टू कंसिडर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सरफेस पे एक्चुअली मटेरियल प्रेजेंट है। मैंने शेल पे भी बोला था, जहाँ पे एक्चुअली मटेरियल प्रेजेंट हो, सॉलिड चीज प्रेजेंट हो, वहां के लिए आपको चार्ज डेंसिटी देखनी पड़ती है कि लीनियर है, सरफेस है या वॉल्यूम है। यहाँ पे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है मटेरियल, तो क्या होगी आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सरफेस के केस में अंदर कुछ नहीं था तो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी, शेल के केस में सरफेस था, अंदर कुछ नहीं था। So in this case we have some material present inside, so we are going to consider volume charge density. Now volume charge density is rho, that is charge upon volume. So I can clearly write charge is equals to density into volume. Let's do it then. 1 upon 4 pi r square q. In place of q I can write rho into v, volume of sphere, that is 4 upon 3 pi r cube.
आर तो ऑब्वियसली कौन सा होगा, जो ये एक्चुअल स्फीयर है जहाँ पे आपके चार्जेस एक्चुअली में प्रेजेंट है और आप जहाँ पे कंसिडर कर रहे हो निकालना, तो ये कर दिया मैंने। अब कैंसिल आउट हो रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपका, इससे ये कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली ये एप्सिलॉन नॉट क्यूब मत समझना, 4/3 है राइट। सो वी आर लेफ्ट विद कौन कौन सी चीजें रह गई आपकी, रो r upon 3 epsilon naught. So this is your electric field at the surface of solid sphere. किस पे डिपेंड कर रहे हैं, रेडियस पे और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वैसे सेम रहती है, मेन किस पे डिपेंड कर रही है, वो रेडियस पे डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा रेडियस होगा तो वो उतनी ज़्यादा फील्ड होने वाली है, राइट। ओके, सो अब डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सरफेस के केस में वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाउ थर्ड केस, इनसाइड द स्फीयर, inside the sphere, and we know inside the sphere radius of Gaussian surface is less than the radius of actual solid sphere. Let's take a solid sphere, उसके बाद एक Gaussian surface, this is your Gaussian surface, something like this. Now we know if we are going to take a small surface ds, its direction represented by this, also electric field is in direction because the charge we have given to the surface is positive. इस पूरे solid sphere को हमने चार्ज कौन सा दिया, पॉजिटिव चार्ज ही दिया। यहाँ पे लिख भी देता हूँ प्लस क्यू प्लस, और यहाँ पे भी प्लस लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप एक चीज देखोगे यहाँ पे, यू मस्ट सी, जो आपका फॉर्मूला लगा देते हैं। चलो ये चीज़ तो हमारी सेम ही रहने वाली है, फाई इज इक्वल्स टू बिल्कुल सेम फॉर्मूला, क्योंकि एंगल वगैरह सब सेम है, तो बार बार वो चीज़ रिपीट करने का कोई फर्क नहीं, वो कोई वो नहीं बनते। आगे देखते हैं, बार बार रिपीट करूँ कोई लॉजिक नहीं है उस चीज़ का। देखो यहाँ तक सेम है। अब चार्ज की अगर मैं बात करूँ, चार्ज मैं यहाँ ले रहा हूँ क्यू डैश, रीज़न है इसका, मैंने नॉन कंडक्टिंग बात, मैंने कहा था नॉन कंडक्टिंग पे फोकस रखना है कि यार ये चीज़ मैंने क्यों बोली है कि आपको कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग बॉडी लेनी है। देखो ये चीज़ हमें देखनी है। आप यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ई है ऐसे, क्यू डैश लिया मैंने, क्यू डैश क्यों लिया, यहाँ पे सारा का सारा चार्ज सरफेस पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि शेल नहीं है, खाली बॉडी नहीं है, तो चार्ज अंदर भी प्रेजेंट होगा। अब एक सिंपल सी बात यह है कि जितना चार्ज सरफेस तक पे था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना चार्ज था, क्या उतना ही चार्ज अंदर भी प्रेजेंट होगा? नहीं, चार्ज उतना अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि बॉडी जैसे जैसे बड़ी होगी चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट कर पाएगी। तो सरफेस तक उसका चार्ज ज़्यादा होगा, लेकिन अंदर उसका चार्ज क्या होगा, कम होगा। एक बहुत सिंपल सी बात, एक बड़ी लेदर की बॉल, एक छोटी सी लेदर की बॉल, बड़ी लेदर की बॉल के ऊपर ज़्यादा चार्ज एक्वायर कर सकता है वो, छोटी लेदर की बॉल कम चार्ज एक्वायर कर पाएगी। तो वही चार्ज अब मैंने क्या करना पड़ा, मुझे चेंज करना पड़ा। अगेन अब आपको पता है यहाँ पे जो डेंसिटी होगी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम भी तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी सेम रहती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सेम। चार्ज अपॉन वॉल्यूम, आपका चार्ज कम हो गया तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब आपका रेडियस इतना है, पहले रेडियस इतना था, अब रेडियस आपका इतना है। तो जब चार्ज कम हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ है, ये चीज़ क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट। So we can replace q dash by rho v dash। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका 4 pi r square स्मॉल r, बिकॉज सरफेस एरिया किसका होगा, गॉसियन सरफेस का। दिस इज योर गॉसियन सरफेस s, यहाँ पे भी लिख देता हूँ s, यहाँ पे भी s। q dash, in place of q dash we can write rho 4/3 pi r क्यूब, इतना लिख दिया। ये 4 pi r स्क्वायर नीचे आएगा, 4 pi r स्क्वायर, और एक क्या रहा आपका एप्सिलॉन नॉट। जो जो कैंसिल हो रहा है करते जाओ, 4 pi से 4 pi r स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया फाइनली, E इज इक्वल्स टू, तो नेक्स्ट स्टेप में करना था ये
कंफ्यूजन हो जाएगी, नहीं तो अभी इतना लिख देंगे क्यू डैश की जगह रो वी डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट स्टेप ए इज इक्वल्स टू क्वाइट सिंपल रो 4/3 पाई आर क्यूब ऊपर से ये क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे गया 4 पाई आर स्क्वायर और एक क्या बचा आपका एप्सिलॉन नॉट। नाउ कैंसलिंग द टर्म्स वी आर लेफ्ट विद इज इक्वल्स टू योर रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सो ये सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगी? ऑब्वियसली यहाँ पे होगी, बिकॉज r यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, राइट? r क्या है सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा चाहे इनसाइड हो चाहे आपका सरफेस पे हो, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है, बिकॉज रो तो सेम है, 3 भी सेम है, एप्सिलॉन नॉट भी सेम है। वो किसके प्रोपोर्शनल है? r के प्रोपोर्शनल है। r किस केस में मैक्सिमम है? जब वो सरफेस पे है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी? मैक्सिमम। ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है सारी की सारी। नोटेड डाउन, तीनों केसेस मैंने अलग से बिल्कुल साफ साफ कर दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन से केस में क्या करना था। डू इट फास्ट, टेक द स्क्रीनशॉट। कर लिया होगा आप लोगों ने नोट्स। अब देखते हैं इसके बाद एक केस हो रहा है, थोड़ा सा छोटा सा है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर वैसे तो। अगर मैं बात करूँ एट सेंटर, सेंटर पे क्या वैल्यू होगी? ऑब्वियसली जो सेंटर पॉइंट है वो इनसाइड द सॉलिड स्फीयर है, और इनसाइड के केस में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r के ऊपर डिपेंड कर रही है। और अगर मैं सेंटर की बात करूँ, सेंटर पे रेडियस की वैल्यू क्या होती है? एट सेंटर रेडियस इज योर 0, चाहे ये 0 लो चाहे ये 0 लो, राइट? तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी? 0। तो याद रखना सेंटर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। नाउ टेकिंग दीज 3 केसेस इनटू कंसिडरेशन वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ। जैसे आपने शेल के केस में किया था वैसे अब सॉलिड स्फीयर के केस में भी करते हैं। बहुत इजी है। लेट्स सी, दिस इज योर r, दैट इज रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस जो कि वैरी कर रहा है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे वो गॉसियन सरफेस के रेडियस के इक्वल होता है, राइट? नाउ वी नो फ्रॉम 0 to r, दिस इज योर इनसाइड द स्फीयर, दिस इज योर सरफेस एंड दिस इज योर आउटसाइड। ये तो आपको पता ही है कि जब ये वाला r वेरी कर रहा है, r इक्वल्स टू r आ गया, इसका मतलब क्या है? इससे पीछे जो गॉसियन सरफेस का रेडियस होगा वो क्या होगा? एक्चुअल जो सॉलिड स्फीयर है उसके रेडियस से कम होगा, मींस वो पॉइंट क्या इनसाइड लाई कर रहा है। और आपने एक चीज देखी, इनसाइड के लिए E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो ऐसे ही जाता है। एक कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं मैक्सिमम का, दिस इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ये इनसाइड का केस है आपका। एंड मैंने एक चीज बोली थी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? सरफेस पे। सरफेस पे मतलब जब आपका r इक्वल्स टू क्या होता है? r मींस रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो ये आपकी क्या आ गई है? मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। अब उसके बाद जब रेडियस गॉसियन सरफेस का किससे ज्यादा होने लग गया? सॉलिड स्फीयर के रेडियस से, तो आपका एक्सप्रेशन जैसे आपका शेल का आया था बिल्कुल सेम आया था, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वो ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन आया था इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, राइट? दैट इज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और यहाँ पे आप लिख सकते हो E इज इक्वल्स टू जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू E m लिख रहा हूँ, E max रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज योर ग्राफ। और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी। उसके बाद यहाँ तक एक बार फटाफट नोट करो जल्दी से, उसके बाद में आगे नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन करेंगे। सबके सब अच्छे से करने हैं आप लोगों को। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। प्लेट फास्ट यहाँ तक हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं गॉस थ्योरम के, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर ही आने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो कोई सा पेपर हो आपका, चाहे CBSE, JEE मेंस, एडवांस या नीट, कोई सा भी पेपर हो, बिट्स, BIT वगैरह कुछ भी। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आँख कान दिमाग सब खोल के रखना है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इंटेंसिटी भी लिख देते हैं चलो। ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज मतलब कोई एक बहुत थिन शीट दी गई है, बहुत थोड़ी सी, जैसे पेज होता है आपका उससे भी थिन, उसके ऊपर कोई चार्ज दिया, अब आपको बताना है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास के रीजन में कैसी होगी। अगेन हमारे को करना है गॉस थ्योरम का यूज, किया कैसे होगी ये चीज ये देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ थिन शीट, हम यहाँ बना देते हैं। ऐसे एक तीन शीट कंसीडर करी मैंने, उसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया। चलो मैं एक चीज और कर देता हूँ फिर बताता हूँ। इसको दोबारा बनाते हैं, साफ सुथरा बनाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, बिकॉज डायग्राम सबसे मेन है। डायग्राम समझ आ गया फिर तो कंसेप्ट वैसे क्लियर है। यहाँ से बनाए यस। अब क्या किया मैंने, शीट को एक पॉजिटिव चार्ज दिया, सारा का सारा उसके सरफेस पे स्प्रेड हुआ। सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपको एक चीज तो क्लियर होगी, अगर ऐसे कोई शीट है, सपोज करो एक बिल्कुल प्लेन शीट है, मैंने उसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक केस में ऐसे बाहर आएगी, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड रहते हैं, और इस साइड में ऐसी आएगी। ठीक है, मैंने वही पेज ले रखा है, एक इसकी राइट साइड है और एक उसकी लेफ्ट साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी होगी। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैंने क्या किया यहाँ पे उसके सेंटर को पियर्स करते हुए गॉसियन सरफेस किया क्रिएट, जो कि आपकी सिलेंड्रिकल शेप है। अब आपको पता है सिलेंड्रिकल शेप के तीन सरफेसेस होते हैं, राइट? एक ये वाला सरफेस, एक ये सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। मैंने पहले भी समझाया था, एक ये सरफेस, ये वाला, एक ये वाला सरफेस, ये वाला, एक ये वाला कर्व्ड सरफेस, राइट? नाउ वी हैव टू कंसीडर दीज थ्री सरफेसेस एंड ट्राई टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दीज थ्री सरफेसेस। तो आपको पता लग जाएगा कैसे आएगा आंसर। लेट्स टेक दिस सरफेस फर्स्ट। अब आपको पता है छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं, दैट इज ds। ds कंसीडर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ds। अब आपको पता है आउटवर्ड नॉर्मल तो इसी डायरेक्शन में होगी, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, वो भी हमारे को दिखाई देगी। क्लियर है? ये आपका था फर्स्ट सरफेस। सेकंड सरफेस की बात करते हैं, अगेन ds। बहुत आसान है, आउटवर्ड नॉर्मल ऑब्वियसली ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, ये भी दिखाई देगा हमारे को। अब कर्व सरफेस का कोई सा भी पार्ट कंसीडर कर लो, यही पार्ट कंसीडर कर लेता हूँ। चलो मैं नीचे भी करके दिखा दूंगा, नीचे वाला पार्ट भी। आपको पता आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे बनेगा, ds इसका पार्ट है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे है। ऊपर वाले सरफेस कंसीडर किया, आउटवर्ड नॉर्मल ऊपर, ये दिखा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेकिन इस रीजन में, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट, ये रीजन है, वो शीट के, इस शीट के यहाँ पे लाई कर रहा है, कोई इस जगह पे लाई कर रहा है, ऐसे यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को इधर इस डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी। ये मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका क्या था, थर्ड कर्व सरफेस। नीचे भी ले लूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। यहाँ पे ले लेते हैं, नीचे लिया, आउटवर्ड नॉर्मल नीचे, एन कैप, राइट? बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में ही है ना आपकी, इस डायरेक्शन में दिख रही होगी वो चीज। मैं छोटा सा ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, और यहाँ पे भी एंगल कितना है, 90। बस यहाँ से आधी चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज थ्री सरफेसेस एंड ट्राई टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। पहले हम फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं। फर्स्ट सरफेस फॉर्मूला देखो फिर से वही है आपका, phi is equals to ADS। सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं,
यहाँ पे क्या आएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब ds की वैल्यू हम रखते हैं वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से ds रख दिया, रिप्रेजेंट क्या करता है उसकी n कैप। नाउ वी क्लियरली नो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस एरिया वेक्टर इज सेम। तो क्या रह जाएगा आपका वेक्टर का साइन हटा, क्या बचा सिर्फ ई डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी सिर्फ इतना लिखते हैं और क्या आ जाएगा यहाँ से फाई की वैल्यू फर्स्ट सरफेस फर्स्ट सरफेस फर्स्ट सरफेस फर्स्ट सरफेस, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी ई एस। फर्स्ट की वजह से फ्लक्स कितना आ गया आपका ई एस, इतना देखेंगे अभी। ये चीज भी छोड़ दो, सिर्फ फ्लक्स निकालते हैं, राइट ई एस आ गया। अगर हम सेकंड सरफेस की बात करें, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अरे आसानी से होगा बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सेकंड सरफेस इज दिस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड सरफेस, कहीं लिखा नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। अब अगेन बिहेवियर आप देखोगे, जैसे इसका बिहेवियर है वैसे इसका बिहेवियर है। तो मैं फाई टू अगर लिखता भी हूँ, चलो लिख देता हूँ, वही सारा का सारा प्रोसेस होने वाला दोबारा से। ई डी एस वेक्टर सरफेस फाई टू, सीधा सीधा लिख दूँ, फाई टू की वैल्यू कितनी आएगी ई एस, सब सेम है, कोई फर्क नहीं है। ये सारी चीज दोबारा लिखनी है तो टाइम क्यों वेस्ट करा, राइट। अगर मैं थर्ड सरफेस की बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड सरफेस। नाउ इन केस ऑफ दिस थर्ड सरफेस वी कैन क्लियरली सी दैट एंगल बिटवीन, यहाँ पे सीधा लिखो, एंगल बिटवीन एन कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री। आप इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसे लिखो, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी और एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दो, जो कि मैं क्या कह रहा हूँ आर कैप, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा पंगों में नहीं पड़ना। सिर्फ इतना लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो फाई थ्री इज इक्वल्स टू, जो आप ई डी एस ऐसे करोगे इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे 0। जिसको ये पार्ट समझ आता है, जिस तरीके से समझ आता है वो ऐसे करे, जिसको ये एन कैप वगैरह समझ नहीं आते हैं वो इस तरीके से भी कर सकता है फाई वन। अब आपको पता है ई डॉट डी एस है, क्लोज सरफेस है, सीधा सीधा शॉर्ट में करूंगा, क्या आ जाएगा ये ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ई डी एस कॉस थीटा में ब्रेक करते हो, दो तरीके से करवा रहा हूँ, जोन सा आपको ठीक लगे। क्लोज सरफेस, अब आप इसे क्या लिखोगे ई डी एस, उसके बाद क्या लिख दोगे ई एस, ऐसे कर लो, चाहे जोन सा आपको ठीक लगे। दोनों से रिजल्ट क्या आ रहा है सेम, राइट। ऐसी सेम, सेकंड तो सेम ही है, थर्ड केस में भी क्या करोगे आप, थर्ड के लिए कर देते हैं, चलो सेकंड तो बिल्कुल सेम है, सेम ही लिख रहा हूँ मैं सेकंड के लिए। तो उसके बाद ये सेकंड है आपका, थर्ड के केस में क्या करना है आपको, वही चीज लिखनी होगी ई डी एस क्लोज सरफेस क्लोज सरफेस क्लोज सरफेस। जहाँ भी है क्लोज सरफेस अगर मैं बोलता हूँ आप लोग लगा लिया करो, लगा दिया बस। यहाँ क्या आ जाएगा आपका cos 90 and cos 90 is 0, so phi 3 is 0 डायरेक्ट, कहानी खत्म। नाउ वी हैव, if we want to calculate net flux phi net is equals to, as we know flux is a scalar quantity, so it is the sum of all the fluxes, right, putting the values. Phi 1 is es, phi 2 is es and phi 3 is 0, so phi net is equals to 2es. As we know phi net according to Gauss theorem, phi is equals to q upon epsilon naught. इसी वजह से वहां से मैंने हटा दिया था क्योंकि हमें नेट निकालना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा q upon epsilon naught 2es, राइट। e की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से q upon 2 epsilon naught s, ये एक वैल्यू आ गई। बट फिर वही बात आ जाती है, एक्चुअल में अगर देखिए सरफेस है, सरफेस पे चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही होगा, तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी अब तक आपका दिमाग चल चुका होगा क्योंकि मैंने सरफेस बोल दिया, दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी नो सिग्मा इज इक्वल्स टू q अपॉन s, देयरफॉर q इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू s, राइट।
So putting the value of q, that is sigma s, in this equation we get E is equals to sigma s upon 2 epsilon naught s. S से s cancel. Now we are left with E is equals to sigma upon 2 epsilon naught. One of the most important very most important relation, E is equals to sigma upon 2 epsilon naught. नेक्स्ट लेक्चर में सीधा यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें 2 शीट्स लेंगे हम, 3 शीट भी कंसिडर करें, 4 करें, 5 करें, जितनी मर्जी कंसिडर कर सकते हैं हम. सिर्फ एक का लॉजिक हमें समझ आना चाहिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर, जिसके अंदर हमने 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस किया. इसको ढंग से रिवाइज करो. नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड करूँगा. क्वेश्चंस भी ट्राई करते रहो, क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाऊँगा मैं, इसी के ऊपर बेस भी करवाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. सो रिवाइज योर लेक्चर्स. पिछले लेक्चर्स अगर आप लोगों को ने नहीं देखे हैं तो उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता ही रहता हूँ. और भी हैं बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, तो आप उनको भी देखो. सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो कीप ऑन वॉचिंग द लेक्चर्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, एंड बाय बाय.